Yes, Yes, sir. sir. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो शुरू करें फिर आज के लिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले कौन, जैद जैद पढ़ेगा ना? जैद है? जैद है? Yes, sir. ठीक है जैद, एक बार जरा शुरू करो। Reserves constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. The constitution maker, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education, and contact to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Some constituencies, sir नीचे करिए. Some constituencies are reserved for people who belong to the SC and ST. In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently, in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. As on 26 January 2019, this number is in proportion to their share in the population. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away from the legitimate. Sir, नीचे करो. बेटा ये तो मेरी तरफ से तो विजिबल है, नहीं दिख रहा क्या तुमको वहाँ पे? Share of any other social group. This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level in many states. Seats in rural panchayat and urban सर नीचे municipalities and corporations. Local bodies are now reserved for other backward classes as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, one-third of the seats are reserved in rural and urban areas bodies for women candidates. कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? मानस, चलो मानस से शुरू करते हैं। ओके सर। सर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, ये हमें इलेक्शंस में मतलब वोट करने का और खुद एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह खड़े होने का सर दोनों का मौका देता है। लेकिन सर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो थोड़े वरिड थे। वो वरिड इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था अगर कल को हम एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिसाइड करते हैं और अगर हम वहाँ पे अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिसाइड करते हैं तो जो लार्जर सेक्शन के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो लोग ही ऊपर आ सकेंगे और जो वीकर सेक्शन है उनके जो सीट्स है, उनके जो राइट्स है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो सर इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल सिस्टम के बारे में सोचा और सर इसी स्पेशल सिस्टम को हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम दिया है।
सर इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं लाइक एससी एसटी विच आर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सर इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि इस सीट से फिर इस वार्ड इस लोकेशन से सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग खड़े हो सकते हैं जो कि एक लोअर कम्युनिटी है, और जो वो है एससी या फिर एसटी। सर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा 26 जनवरी 2019, 84 सीट्स जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व्ड हैं और 47 सीट्स जो एसटी है उनके लिए रिजर्व हैं। और सर इन सीटों पर किसी भी और कम्युनिटी के लोग इलेक्ट नहीं किए जा सकते। वैसे सर इस सिस्टम को एक्सटेंड करके लोकल लेवल्स पर भी लाया गया है। जैसे सर जो लोकल बॉडीज है, जो म्यूनिसिपैलिटीज है, जो रूरल एरियाज में है, वहाँ पे भी इसको लाया गया है। वहाँ पे ओबीसी एक क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वहाँ पे उनको इसका फायदा दिया गया है। और वहीं पे सर वुमेन भी है, वुमेन को 1/3 ऑफ द सीट्स दी जाती हैं जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, इनके लिए रिजर्व्ड होती है वो सीट्स 1/3। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी एक चीज याद रखनी है कि जैसा कि इसने बताया मानस ने, उसके अलावा एक चीज थोड़ी सी और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो भी सीट्स जो रिजर्व्ड सीट्स होती है ना, उसमें एससी या एसटी के कैंडिडेट या जिसके लिए भी रिजर्व होती है, फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए रिजर्व है या फिर एससी एसटी के लिए रिजर्व है या फिर किसी और चीज के लिए माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, तो इस तरह की जो रिजर्व सीट होती है उसमें तो कोई और इलेक्शन के लिए स्टैंड कर नहीं कर सकते, लेकिन वोट सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वोट भी सिर्फ एससी एसटी करेंगे, वोट सभी लोग करेंगे, पहली चीज। यस सर। दूसरी चीज इसमें एक और ध्यान रखेंगे कि एससी एसटी रिजर्व कैटेगरीज की सीट से तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जनरल से खड़े नहीं हो सकते। जो जनरल सीट्स होती हैं, जो अनरिजर्व सीट्स होती हैं, उनके थ्रू भी एससी और एससी जो हैं वो वोट इलेक्शन में जा सकते हैं, चाहे वो एज ए कैंडिडेट जाए या फिर एज अ वोटर जाए, वो दोनों तरफ वो वोट भी कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ बोलो सर। लोकसभा में सर एसटी की सर 84 सीट्स हैं, तो सर इसमें सर वुमेन्स की सर 84 में से हाफ होंगी या फिर मतलब कुछ अलग ही उनके डिसाइड किए जाते हैं कि इतनी वुमेन्स के लिए? नहीं, 1/3 सीट्स के बारे में कहा गया है कि 1/3 सीट्स टोटल जितनी भी सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए, ऐसा कहा गया। यस सर। लोकल लेवल पर है सर अभी ये सिस्टम, तो अभी पूरा नहीं आया लोकसभा राज्यसभा में। क्या चीज बेटा? सर ये जो 1/3 वाला 1/3 ऑफ द सीट्स, ये जो लोकल बॉडीज है अभी वहीं पर है ना लागू? हाँ नहीं, शुरुआत तो सबसे पहले इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हुई है। ओके सर। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उतने अच्छे से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे, बट इट विल कम सूनर और लेटर। ओके सर। तो सर ये सारी पार्टीज के मिला के मतलब जितनी भी सीट्स है उसमें होता है, या हर पार्टी को इतनी मतलब टिकट्स के लिए भी कुछ वो होता है रिस्ट्रिक्शन? नहीं नहीं, देखो फॉर एग्जांपल अगर एक घर है, ऐसे 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 समझो, एक घर है उसमें से उसमें 10 कमरे हैं और 10 में से 3 कमरे वुमेन के लिए हैं। ठीक है, अब उस रूम में चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट आए या बीएसपी के आए या वो कांग्रेस के आए या वो किसी भी पार्टी के आए, वो होंगी महिला ही, वो लेडी कैंडिडेट ही होंगी और वो आएंगी और अंदर कॉन्टेस्ट करेंगे और जो भी जीतेगा तो आफ्टर ऑल वो वुमेन ही होगा ना। और वुमेन में होता है कि अगर कोई टिकट ले ही नहीं रही है वुमेन, तो ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि 1/3 वुमेन को देना ही देना है। हाँ, ओके। लेकिन वहां पर आपका कैंडिडेचर नहीं हो पाएगा ना फिर उस सीट के लिए। मतलब जो सीट वुमेन के लिए है वो वुमेन के लिए ही होगी। हाँ, वहां पर खड़े सिर्फ विमेन ही होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। सभी पार्टीज अपनी अपनी विमेन कैंडिडेट्स को वहीं से खड़ा करेंगे, राइट? हाँ, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि भाई आप दिल्ली में चांदनी चौक की सीट से आपको विमेन को खड़ा करना पड़ेगा, तो ये नहीं है कि आप भैया आप वहां पे मेन को भी बोल देंगे कि खड़ा हो जाओ क्योंकि आप वहां पे हमारी पार्टी में कोई विमेन कैंडिडेचर के लिए खड़ी नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे आपको वुमेन को ही खड़ा करने का, और सारी पार्टी जितनी भी है सब वुमेन ही वहां से कॉन्टेस्ट करेंगी। ठीक है? यस सर, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी डिसाइड कर दी जाती है। हाँ बिल्कुल सही। ओके। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा। यस सर। जैद के बाद कौन पढ़ेगा?
administration. जैद के बाद कोई पढ़ना चाहता है? Sir, can I? बी बैच से। सर Can I? हाँ क्रिश, ठीक है बेटा, पढ़ो। Voters list. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voters list. This is an important step, for it is linked to the first condition of democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. In chapter 1, we read about the principle of universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, and some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. In our country, all citizens aged 18 years and above can vote in an election. बेटा आपका वॉइस कट रहा है। Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion, or gender. Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situations. It is a responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As new persons attain voting age, names are added to the voters list. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card EPIC has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. But this card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. Nomination of candidates. We noted above that in a democratic election should have a रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा। एक जो आपका हेडिंग हुआ करे ना, उसे पढ़ के फिर रुक जाया करो, ठीक है? Yes, sir. चलिए, अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? मोक्षिका। यस सर। चलो मोक्षिका बताओ। सर, जैसा कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज है कि everyone should have one vote and one vote should have one value and मतलब सबकी वैल्यू इक्वल होती है सबके वोट्स की। तो इसी बेसिस पे जो हमारी वोटर्स लिस्ट जो है वो लागू की जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान छूटे ना जो 18 साल से ऊपर मतलब 18 साल का हो चुका है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो देखे कि कौन लोग 18 साल के हो चुके हैं, हमें किन किन को वोटर्स लिस्ट में ऐड करना है, मतलब वो वोट कास्ट कर सकते हैं अपना जब उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है। दूसरी बात ये उनकी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी होती है कि किसका नाम वोटर्स लिस्ट में से हटाना है। सपोज कोई इंसान यहाँ से शिफ्ट होके अमेरिका चला गया या कहीं और चला गया, तो अब वो यहाँ का सपोज उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो अब वो इंडियन तो है
बट अब वो वोट कास्ट नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उस लिस्ट को हटाना, मतलब इसकी चेकिंग जो है वोटर्स लिस्ट की, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और वोटर्स लिस्ट में वो लोग आते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। ये इसका मोटिव यही होता है कि कोई भी इंसान छूटे ना, क्योंकि हर इंसान की अपनी नीड्स, अपनी व्यूज और अपने मतलब वांट्स होते हैं, एंड सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें निग्लेक्ट कर दो जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि कंट्री पे जितना हक एक वेल सेटल्ड पर्सन का है, उतना ही हक एक झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान का भी है। तो इसी वजह से वोटर्स वैल्यू की जाती है। और बेसिकली इसका वही रहता है कि सबका इक्वल वोट है एंड सभी को ही डिसीजन मेकिंग में अपना पार्ट देना जरूरी भी है, हमारा हक भी है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो बस सर इसमें यही। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे जो इसमें बताया बच्चा, कि जैसे कि जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं और जो वो चले जाते हैं इंडिया से बाहर, तो वो वोट नहीं कर सकते। सिर्फ बाहर जाने पर ही नहीं, अगर वो डेथ हो जाती है उनकी तो भी वहां पर वो लिखा जाएगा। ठीक है, वहां पर उसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कि कई बार क्या होता है कि आप एक स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट में आप शादी करके जाते हैं या फिर आपका ट्रांसफर हो, स्टेट लिस्ट में आप वहां से हटा के अपना नाम उस जगह पे उसको रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, ताकि आप उस जगह के स्टेट्स Yes, के sir. इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, Yes, sir. हाँ, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आप फॉल करेंगे उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अपना वोट देंगे। ये नहीं है कि अगर आप इंडियन सिटीजन तो आप सर बीच बीच में सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर बीच बीच में नेट जा रहा है। अच्छा चाहे तो वो नहीं हो सकता। सर कुछ भी समझ नहीं आया, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यार आप लोग की वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मेरे पास आते आते। मेरी सर ब्रेक हो रही आपकी है? हो रही है बहुत। पता नहीं सर क्या बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बच्चों मुझे पता है मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है, वो तुम्हारे मैसेज देख रहा हूँ मैं, बट मैं सर क्या अब करूँ, नहीं यहाँ हो पर रही वाईफाई ब्रेक, का अब इशू ठीक है। है। मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं कनेक्ट करके सुबह से सर अब ठीक है। मैं कनेक्ट करके सुबह से कई बार इसको डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। आई हैव तो बीच बीच में बीन ट्राइंग टू फिगर दिस थिंग आउट कि कैसे हो जाए ये, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। चलो अभी क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। yes. यस आई कैन यू समटाइम्स, आपकी वॉइस भी कई बार ब्रेक हो जाती है तो फिर कट रही है, तो फिर कटने लग गई। आई डोंट नो। by the time this fixes, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम रहेगी। जस्ट अ मिनट, मैं रिजॉइन करता हूँ एक बार बच्चों।
Am I audible? यस सर, अभी तो आ रही है। Yes, sir. ओके ओके ओके, अभी क्लियर है पहले से? Yes, sir. चलें आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, और कौन है B1 से? तो मैं पढ़ूं? ज्योत्सना, हाँ बच्चा पढ़ो। Nomination of candidates. We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. There are some other restrictions on criminals, etc., but these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and supporters and support. Party's nomination is often called party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit recently. A new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration given full details of serious criminal cases pending against the candidate. Second, details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family. And third, educational qualification of the candidate. This information has to be made public. This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate. ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, एक बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का कि आप कब वहां पर आप कैसे कैंडिडेट बन सकते हैं, कैसे आप उसको कैंडिडेचर के लिए क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत आसान तरीका याद रखने का कि भैया जो आदमी उस एरिया में वोट कर सकता है वही आदमी उसमें कॉन्टेस्ट भी कर सकता है, इलेक्शन लड़ भी सकता है। Yes. बस एक छोटा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? वो अंतर ये है कि जहां पर वोट करने के लिए 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, वहीं पर इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25. सर पर लोकल शाबाश, गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए 21 है ना? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए 21 और सर राज्यसभा के लिए 30 है। पर बेटा राज्यसभा के इलेक्शन तो डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होते ना, इसलिए Yes, अभी हम sir. सिर्फ लोकसभा की बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए। ठीक है, चलिए। Sir, अच्छा, जब 30 sir. नॉमिनेशन करते हैं, सुनो, जब वो नॉमिनेशन करते हैं तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसे नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं, और उसके साथ साथ एक मिनिमम अमाउंट आपको सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी उसमें 10% से कम वोट्स आती हैं आपके पास, तो आपकी वो उसे जमानत की तरह से रखा जाता है, आपके उसे वो डिपॉजिट कर लेते हैं, और आपके पास एक मिनिमम सर्टेन क्राइटेरिया से कम वोट्स आती हैं तो आपके उस पैसे को जमा कर लिया जाता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आप उसे वापस नहीं ले सकते। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी होता है वो। चूंकि आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके लिए काफी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है ना भाई, आपके लिए बैलेट छपाया जाएगा अलग से, आपका Yes, नाम sir. उस मशीन में जो है वो अलग से कॉलम होगा, राइट, आपके लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो सब चीजें थोड़ा सा, इसलिए आपको एक मिनिमम अमाउंट है। ये नहीं कि कोई भी जाकर के वहां पे इलेक्शन लड़ने लगे, पता चला कल को 2 वोट आई नहीं है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो जानबूझ के कम लोग उसे लड़ पाए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो पाए ना, राइट। मान लीजिए किसी व्यक्ति एक बहुत फेमस है, लोग जानबूझ के उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, राइट। एक बंदे के खिलाफ अगर 100 लोग खड़े हो जाएंगे जिनका कोई जरूरत ही नहीं है, जिनको पता है वो हारेंगे, Yes, राइट, sir. Yes, sir. फिर भी वो लोग खड़े, तो उससे बचने के लिए वहां पर वो लोग एक मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं। ठीक है, और टाइम बचे गवर्नमेंट का और पैसा भी बचे। ठीक है, नाउ विल गो फॉर इलेक्शन कैंपेन। ठीक है,
इलेक्शन कैंपेन कौन पढ़ेगा बच्चों? Sir, can I? सर वैभव। पहले कहना है किसने बोला? सर जैद ने। तो जैद ने वो पढ़ चुका है इसमें। जैद तो पढ़ चुका है बेटा। वैभव वैभव से पढ़वाते हैं एक बार। वैभव बेटा पढ़ो। Election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government, and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns. In our country, such campaigns take place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address election meetings and political parties, and mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in previous elections. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan Garibi Hatao, remove poverty in the Lok Sabha election of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. Save Democracy was the slogan given by the Janata Party under the leadership of Jai Prakash Narayan in the Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. The Left Front used the slogan of "Land to the Tiller" in the West Bengal Assembly elections held in 1977. Protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to. But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters, appeal to them in the name of caste or religion, use government resources for election campaign, and spend more than 25 lakhs in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh rupees in a constituency in an assembly election. If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda, use government vehicles, aircraft, and officials for elections, and once elections are announced, ministers shall not lay any foundation stones of any project, take any big policy decisions, or make any promises of providing public facilities. ठीक है, चलिए अब इसे कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को बताओ। नारायण, was break. नारायण, लव्या, Yes, sir. Okay, sir. I will explain. कैन यू ट्राई? सर ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। इलेक्शन कैंपेन तो सर उसमें जो इलेक्शन का मेन पर्पस होता है सर,
वो होता है कि मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें और गवर्नमेंट को चूज करें और प्लान्स को चूज करें, मतलब कि मतलब कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन से पीपल बनेंगे। और मतलब हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो वो जो मतलब डिस्कशन ऑफ फ्री और फेयर हो, मतलब कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है और कौन कौन सी अच्छी पॉलिसीज हैं उनकी, ये सब हमें पता चलता है इलेक्शन कैंपेन में। और हमारी कंट्री में इलेक्शन कैंपेन 2 हफ्ते के लिए होते हैं, जब अनाउंसमेंट बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। सर, तो इस पीरियड के दौरान मतलब जो कैंडिडेट होते हैं वो मतलब अपने वोटर्स से संपर्क करते हैं और कंडक्ट करते हैं, और वो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग एड्रेस करते हैं और सर वो अपने सपोर्टर्स को मोबालाइज भी करते हैं। और सर इस पीरियड में मतलब न्यूज़पेपर और टेलीविजन में सिर्फ ये खबरें मतलब न्यूज़ होती हैं कि मतलब इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कैंपेन के बारे में। सिलेक्शन कैंपेन सिर्फ 2 हफ्ते का नहीं होता सिर्फ। सर वो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देती हैं जब वो इलेक्शन हेल्ड होने वाले होते हैं। और सर जो इलेक्शन कैंपेन में सर पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक के अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो इश्यूज उठाना चाहते हैं जो मतलब जो पब्लिक उठाना चाहती थी, जिससे उनकी पार्टी को वोट मिल जाए। लाइक बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारी पार्टीज ने स्लोगन बनाया मतलब जिससे उनकी उसके लिए वो क्या करते हैं? स्लोगन बनाते हैं, मतलब जिससे उनकी मतलब पार्टी को भी वोट मिले, मतलब नए नए वादे करते हैं उस स्लोगन में। हम्म, ये सब फेमस स्लोगन से मतलब एक तो रिमूव अच्छा, कुछ पावर्टी। लोग पहले क्या करते थे? हम्म, सर क्या? हम्म, हम्म। हाँ, मैं बोल बोलो रहा हूँ बोलो सर फेमस फेमस स्लोगन्स हैं रिमूव पावर्टी। रिमूव बोलो पावर्टी बोलो 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 मतलब बोलो, पहले कंप्लीट करो। ये सब फेमस स्लोगन है रिमूव पावर्टी। वो रिमूव पावर्टी मतलब कांग्रेस पार्टी का था जो इंदिरा गांधी ने कहा था। सर सेकंड स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी। वो स्लोगन जनता पार्टी ने करा था। और और थर्ड स्लोगन है हम्म, लैंड टू टाइलर। वो क्या था, हम्म, वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में हुआ था और मतलब 1977 में। और सर जो फोर्थ स्लोगन है हमारा वो प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। ये सर ये स्लोगन दिया था एनटी रामा राव ने, जो तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश में है, उसके जो लीडर थे 1983 में। और सर सर अगला ऑप्शन हम्म। समझाऊं? हाँ, अभी ये पूरा एक, बचा है ना? हाँ, तो एक डेमोक्रेसी में मतलब सर हाँ, मतलब डेमोक्रेसी में ये मतलब इम्पोर्टेंट है और अच्छा है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट फ्री हो इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करने के लिए, जैसे वो चाहते हैं। पर उनके साथ बोलो पर सब पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को मतलब इक्वल चांस मिलना चाहिए जीतने का। इसलिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी अप्लाई करनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट भी मतलब उन्हें फॉलो करनी चाहिए। और सर मतलब इलेक्शन कैंपेन में वो सर कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट मतलब अप, वो रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांग सकता और वोटर्स को धमका नहीं सकता। और सर गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेन के लिए। और सर लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से 25 लाख से ज्यादा, और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। हम्म, यस सर। और सर अगर मतलब वो और ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा अगर वो ऐसा ऐसा करते वो हैं सर, करते तो तो क्या होगा? सर क्या? ऐसा अगर वो करते हैं तो क्या होगा? यस सर, मैं बताऊँ सर। सर अगर वो ऐसा करते हैं तो मतलब हम्म, उनका वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, उनका इलेक्शन लड़ना कोर्ट से मतलब बंद हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और सर फिर मतलब अगर वो मैं जीत भी गए तो भी वो जीत नहीं पाएंगे, मतलब उन्हें चुना नहीं जाएगा। और सर कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करने हम्म, पड़ते हैं इलेक्शन कैंपेन के टाइम।
सर वो उसमें कोई भी पार्टी मतलब मंदिरों में या मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप पे मतलब इलेक्शन का प्रचार वो इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन कैंपेन के कारण कुछ नहीं कर सकती, और वो गवर्नमेंट व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स यूज नहीं कर सकती इलेक्शन में। और सर जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मिनिस्टर्स मतलब कोई बड़ा बिग प्रोजेक्ट और कोई ऐसी फाउंडेशन यूज नहीं वो नहीं कर सकते, और कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि मतलब वो पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, कि मतलब ठीक उनसे है। वो दिक्कत मतलब उनसे कि वो ऐसे इसलिए करते हैं मिनिस्टर्स क्योंकि मतलब उन्हें वो चुन लिया वोट किया जाए, और ऐसा इसलिए मना है कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ मतलब इसको ऐसे समझेंगे आसानी से कि यूजुअली क्या करते हैं, सुनो अब सब लोग सुनो ध्यान से। यूजुअली क्या होता है कि पार्टीज के पास एक कॉमन एजेंडा होता है जिसको हमेशा सब लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी जी के समय से कांग्रेस का एक नारा रहा है, गरीबी हटाओ करके, ठीक है। तो यस उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया है, बहुत सारी चीजों पे काम नहीं कर पाए हैं, वो अलग अलग जो भी चीजें हैं उसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। लेकिन एक सच इतना समझते हैं कि एक एजेंडा दिया था। या फिर हम देखते हैं तो बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिनके और अलग अलग एजेंडाज हैं जिसपे वो पूरा तरह से काम करना चाहती हैं, ठीक है। अब है क्या कि इस तरह के जो कैंपेन्स वो चलाते हैं उससे बहुत सारे वोटर्स प्रभावित हो जाते हैं और उनको वोट करना चाहते बुलाने का। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग इसको उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं उसके थ्रू यूजुअली, और उससे सिर्फ झूठे वादे करके एक तरीके से जीतना चाहते हैं। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा उसको वो वायलेट करते हैं और उसके वजह से उनका कैंडिडेचर जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, उसे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और वो उसको चुनाव में वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर वो कर भी लेते हैं और वो वहां पर जीत भी जाते हैं उसके बावजूद भी अगर वो पाए जाते हैं कि भाई उन्होंने सही नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे वो उनका फिर भी क्या कहते तो हैं उन्हें रिमूव किया वो जाता है। उसको अलाउ नहीं करते हैं, जीता हुआ डिक्लेयर फिर भी नहीं होते हैं वो। हाँ एक चीज और उसमें ध्यान से रखेंगे कि समझेंगे कि भैया एक तो वो क्या कर नहीं कर सकते, लोगों को डरा नहीं सकते कि भाई आप हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुमको मार देंगे, वो नहीं कर सकते। उनको रिश्वत नहीं दे सकते कि भाई उनको तुमको पैसा देंगे, हम तुमको खाना देंगे, तुमको ये देंगे वो देंगे, इस तरह का कोई झूठा वादा नहीं कर सकते, और ब्राइब नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद फिर उनसे ये नहीं कह सकते कि जैसे वो हमारी वोट को कास्ट खरीद और नहीं तुम्हारी सकते। कास्ट एक है या हमारा रिलीजन और तुम्हारा रिलीजन एक है, तो इस वजह से तुम हमें वोट दो, ये नहीं कह सकते, ठीक है। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का काम उसमें यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर है, गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट की जीप्स हैं, कार हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं। मान लीजिए कोई पार्टी आज बीजेपी पावर में है और बीजेपी के कैंडिडेट्स अपनी अपनी सरकारी गाड़ियां जो उनको मिली हुई हैं या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, उनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, ठीक है। और सिंपल सा बात है कि 25 लाख लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 10 लाख रुपए जो कि उनकी असेंबली इलेक्शन है, स्टेट असेंबली की में, वो इससे ज्यादा वो खर्चा नहीं कर सकते, अदरवाइज उनके ऊपर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट में एक चीज और आती है कि वो वर्शिप प्लेसेस को यूज नहीं कर सकते वोट्स के लिए। मान लीजिए वो मंदिर मंदिर जाकर के वोट नहीं मांग सकते, मंदिरों में ये नहीं कह सकते कि हमको आप इस तरह से वोट कीजिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वहां पर वो अपनी बैनर्स नहीं लगवा सकते, ये सब चीजें नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट व्हीकल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सब नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं तब कोई भी नई जो प्लान है या कुछ भी ऐसा उनका दिमाग में चीजें चल रही है, एक्शंस हैं, वो उसको फाउंड नहीं कर सकते, उसको फाउंडेशन लेट नहीं कर सकते, उनकी इनफैक्ट उसको अनाउंस भी नहीं कर सकते। वो ये भी नहीं कर सकते कि भैया आज इलेक्शन अनाउंस हो गए, उसके बाद वो कह सकते हैं ओहो अच्छा इलेक्शन अनाउंस हो गए, चलो तो हम एक झूठा वादा कर देते हैं कि अगर एक काम करो, अगर जो भी अगर हम जीत गए तो सबको 1-1 करोड़ रुपए दे देंगे, ऐसा वादा कर देते हैं। तो वो एक तरीके से बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो उसको अलाउ नहीं करते हैं और वो उनका कैंडिडेचर जो है वो रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ेंगे, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। यस सर।
ठीक है, कौन पढ़ना चाहेगा सब बच्चों? कुछ लिखा तो V1 हुआ है से सर, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सर ये सब लोग तो सर चीज़ें वॉयलेट होती हैं, तो सर इसके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स हाँ के हाँ, साथ कुछ कुछ एक्सप्लेन कर इलेक्शन दीजिए। देखो क्या करता है ना, इलेक्शंस ये दिखने में जितना आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं, पहली चीज तो, क्योंकि इतने बड़े यस देश सर। में एक साथ इलेक्शन करवाना, इट इज अ वेरी टिपिकल थिंग फॉर एनी बट ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग। प्लस बट होना प्लस 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 ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो फेयर रहें। फेयर होना ही बहुत बड़ी बात है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इसमें प्रैक्टिस करते समय पूरी कोशिश की जाती है कि वो उसको कोड ऑफ कंडक्ट में रखा जाए, लेकिन होता क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है कि 25 लाख रुपीज से ऊपर आप स्पेंड नहीं कर सकते हो, तो वो तो मैं यस नहीं कर सर। सकता हूँ ना, लेकिन अगर मेरा भाई चाहे तो उसको तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, वो तो बाहर है, वो तो उसने लगवा दिया पोस्टर, राइट। इस तरह से लूप होल्स के थ्रू बचा जाता है चीजों से, यस सर। Yes, sir. राइट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस यस सर। Yes, sir. और ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और B1 से कोई बच्चा बच्चा है जिसको पढ़ना है? सर अनम। Yes, sir. अनम, Sir, Yes, sir. Kaushik. ठीक है, पढ़ो बेटा। Polling and counting of vote. The final काउंटिंग ऑफ वोट, counting पोलिंग ऑन काउंटिंग ऑफ। The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually can hold the election day. Every person whose name is on the voter list can go to a neighbor polling booth situated usually in a location, school, or a government office. Once the voter goes inside the booth, the election official identity her put a mark on her finger and allow her to cast her vote and again of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting taken place in a fair way. सर अभी ये रह रहा है। हाँ बेटा, पढ़ो। Earlier, the vote used in case who they wanted to vote for by putting a stamp on the voting paper, a voter बैलेट पेपर, bold ballot paper in a sheet for paper वॉलेट नहीं on बेटा, which बैलेट, बैलेट पेपर। ballot. Okay, sir. Oh, in paper is a sheet of paper which the names of a constituent considered along with the party name and symbols are listed. Nowadays, so electronic voting machine EVM are used to record vote. The machine show the name of the candidates and the party symbols. Independent candidates to have their own symbols allowed by election commission. All that the voter has to do is to press the button against the name of the candidate show she wants to give her vote. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and then two EVMs, EVMs are selected and then to a reserved place. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a taken to a secure place.
taken to a secure place a few days later on a fixed date. All the events from a constitutionally are opened. Are the voters secured by each candidate are counted. The against of all candidates are present there to ensure that the constitution is done properly. The candidates who secure the highest number of votes from a constitutionally is declared elected in a general election, usually a constitution of voters in all the constitutional taken place or at the same time on the same day. Television channel, radio and newspaper reports his event within a few hours of country. All the results are declared and Continue with the counting. counting all the results are counting all the results are declared and it becomes clear as to who will from the next government. From the beta form the next government. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, your voice is breaking. Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, who's gonna explain this? Narayan? Yes, sir. Alright, go ahead. सर हमने ये सब तो पढ़ लिया कि इलेक्शन मतलब सर कैसे होते हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सर इलेक्शन के लिए कैंपेन कैसे होते हैं. सर हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्शंस में वोट मतलब सर वोटिंग डे कैसा होता है. सर जो भी इलेक्शन होगा उसका फाइनल स्टेज तो इलेक्शन डे ही होगा, मतलब सर जिसमें सारे वोटर्स जाके अपने पसंद के किसी भी मतलब सर किसी भी कैंडिडेट को वोट करें या पार्टी को वोट करें सर जिन उन्हें लगता है कि जो उनके लिए अच्छा कर सकता है. सर इसी को हम इलेक्शन डे कहते हैं या फिर पोलिंग मतलब सर पोलिंग कहते हैं, जिसमें पोल किया जाता है कि हमें कौन सा कैंडिडेट या पार्टी पसंद है या जिस पे हमें भरोसा है. और सर जिसका भी नाम वोटर लिस्ट पे, जो हमने पहले पढ़ लिया है कि वोटर लिस्ट पे 18+ सर जो भी लोग होते हैं उन सबका नाम होगा, जिनके पास अपना एक वोटर आईडी होगा सर उन सबका नाम उस वोटर लिस्ट पे होगा. सर वो सारे लोग पोलिंग बूथ पे जाके वोट कर सकते हैं. और सर जो पोलिंग बूथ होता है वो ज्यादा मतलब सर 99% लोकल स्कूल्स या गवर्नमेंट ऑफिस ही होते हैं सर, ऐसी जगह जहाँ पे सबके पास पड़े और सब मतलब सबके लिए इजी हो जाना वहाँ की ऐसी जगह पे रखा जाता है. सर जब वोटर अंदर घुसता है बूथ के तो वहाँ पे उसे मतलब सर जो एक सर इलेक्शन ऑफिसर मिलता है सर, मतलब जो वोट करवाता है या फिर हेल्प करता है वोटिंग कैसे की जाती है उसे बताता है और उसका सारा डाटा इकट्ठा करता है. और सर हर पार्टी का एक कैंडिडेट भी वहां बैठा रहेगा ताकि वो देखे कि कुछ मतलब सर कोई दूसरे पार्टी का आदमी या फिर इलेक्शन सही से हो रहा है कि गलत, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इलेक्शन में. सर वो देखने के लिए हर पार्टी का एक कैंडिडेट वहां बैठा होता है. सर पहले जो वोटर्स थे उनको बैलेट पेपर पे स्टैंप लगा के वोट करना पड़ता था, लेकिन अब सर टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो उसके कारण नया सिस्टम आ गया है ईवीएम करके सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इसमें बस हमें मतलब सर जो पार्टी या कैंडिडेट है उसका नाम लिखा होगा, हमें बस उसके सामने जो बटन होगा उसको क्लिक करना होता है सर. मतलब ये इस तरह का सिस्टम होता है और बस हमारा वोट उस आदमी को चला जाएगा. और अगर किसी केस में हमने गलती से किसी गलत आदमी को वोट कर दिया तो सर उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होगा, उसके लिए बाद में बाहर जाके हमें बात करना पड़ेगा और फिर हमारा वोट उससे माइनस करके फिर हमें वोटिंग का वापस ऑप्शन मिलेगा उसमें.
एक चीज ध्यान रखिए उसके साथ के साथ कि वोटिंग पोलिंग जितनी उतनी ही इंपॉर्टेंट उसकी काउंटिंग भी है। यस सर। राइट, यस सर। क्योंकि अगर आपके यहाँ पोलिंग अच्छी हो रही है, यानी आपके लोगों ने वोट किया है, लेकिन अगर उसमें जो काउंटिंग है वो सही तरीके से नहीं सर हो रही है, वॉइस तो ब्रेक हो रही है। अगर उसमें उसको किसी भी तरह से Am I audible now? यस सर। यस सर। सर आप कुछ कह रहे हो? Is there any student who can hear me now? Yes, sir, you are Anyone? audible. यस सर। यस सर यू आर ऑडिबल। All right. No. Yeah, I was saying कि जितना important polling है उतना ही important counting है। तो for this I would just add one thing कि अगर आपके यहाँ से पोलिंग अच्छी हुई है, वोट्स लोगों ने अच्छे डाले हैं, अपनी पसंद से डाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो काउंटिंग में भी हमें ये याद रखना होता है कि काउंटिंग भी इम्पोर्टेंट। पहले तो बहुत टफ होता था कि बैलेट पेपर पे हम लोग वोट करते थे अगर, तो उसके साथ उसमें चीजें खराब होने का डर रहता था, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति उसको पेपर है ना, पेपर तो और एक्स्ट्रा डाले जा सकते हैं किसी भी चीज में, या निकाले जा सकते हैं या काउंट किए जा सकते हैं, तो काउंटिंग में मिस्टेक की जा सकती है। मान लीजिए आपने उस पे, अच्छा एक चीज और होती थी कि पेपर पे अगर किसी भी तरह का कोई और मार्क लगा हुआ है तो वो फिर उसको काउंट नहीं किया जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जिस एरिया में कोई बैलेट पेपर किसी व्यक्ति को अच्छे से वोट मिला है, और लेकिन वहां के लोग जो है वो उसे नहीं जिताने देना चाहते, मतलब वहां के जो नेता टाइप के लोग हैं नहीं जिताना चाहते, तो वो क्या करते थे कि बैलेट बॉक्स में ही इंक डाल दी, पूरे बॉक्स में ही इंक डाल दी, तो वो थोड़ा भी अगर स्पॉट आ गया है उस पे तो वो उसको काउंट नहीं किया जाता था। तो इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी चूंकि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यस सर। सर ईवीएम का इस्तेमाल हम लोग मशीन से वोटिंग मशीन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम कहते हैं, इस्तेमाल कर उसके थ्रू वोट डालते हैं। हाँ, और हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ईवीएम जो हैं वो एक्चुअल में चीटिंग को हेल्प करती हैं, वो लोग ऑनलाइन या फिर ब्लूटूथ के थ्रू या फिर किसी भी तरह से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट जहां तक मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से ईवीएम्स को मैनिपुलेट करना उतना ही इम्पॉसिबल है जिस के बिना किसी भी और पावर के तरीके के बहुत सारे अप्लायंसेस चलाना। आपके घर में पावर का कोई सोर्स नहीं है, ना तो इन्वर्टर है, ना जनरेटर है, ना ही सोलर सेल सिस्टम है, ना ही पावर है, कैसे भी पावर नहीं आ रही है आपके घर में, फिर भी आप टीवी चला रहे हो, फिर भी आप एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। सेम ईवीएम्स को हैक करना भी ब्लूटूथ के थ्रू या फिर ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार ऐसे आरोप लगते हैं, जो लोग हार जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि तुमने चीटिंग करी, तुमने ठीक से नहीं खेला। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग भी कहते हैं भाई तूने चीटिंग करी है, यहाँ पे तूने आउट नहीं दिया है, तूने आउट दे दिया, इस तरह की चीजें करते हैं ना हम लोग। तो अक्सर लोग जो हार जाते हैं इलेक्शन में वो इस तरह की बातें करते हैं। पर मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे कोई भी हो या फिर कैसा भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, राइट। उसकी अपनी वो ये कई बार बोल चुका है, उसकी तरफ से कई बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि आप जितने भी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, या तो इंडिया से या बाहर से भी आप बुला सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे ऑनलाइन, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू, किसी भी तरह से आप इसे हैक करके दिखा दीजिए, इसको तुरंत हटा दिया जाएगा। और हर बार इलेक्शन के बाद, हर साल इलेक्शन होते हैं हमारे देश में किसी न किसी स्टेट में,
हर बार वो इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी करती है और एक भी व्यक्ति वहां जाकर के इसको चैलेंज नहीं करता है। तो जो लोग सिर्फ फालतू बकवास करते हैं, बाहर की चीटिंग हुई है, ये हुआ वो हुआ है, वो बिल्कुल सिर्फ उनका फेक प्रोपेगेंडा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी, भी एटलीस्ट तब तक तो झूठ बोल रहे हैं जब तक वो इसे प्रूव नहीं कर देते, राइट? और प्रूव वो यस कर नहीं Yes, पाते sir. हैं क्योंकि कोई भी, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, पिछले कई सालों से वोटिंग हम लोग ईवीएम यूज कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर हो गए आज, और आई डोंट सी एनीथिंग की जिसमें आप कहीं भी एक बार भी ईवीएम के हैकिंग के ऑप्शन आए हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि आपके मोबाइल में वाईफाई भी कनेक्शन ऑफ है, वाईफाई का चिप ही नहीं है जिसके थ्रू आप वाईफाई ट्रांसमीटर जो होता है वो ट्रांसमीटर ही नहीं है जिसके थ्रू वो वाईफाई रेंज पकड़ सके, ब्लूटूथ ट्रांसमीटर भी नहीं है, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर भी नहीं है, बैटरी कनेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आपका फोन रन कर लेगा इंटरनेट को? नो सर। आप सोचिए एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, फोन की सेटिंग हल्की सी चेंज हो जाती है और इंटरनेट काम करना बंद कर देता है फोन्स में। फिर हम कस्टमर केयर को फोन करते हैं कि भैया हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, फिर वो रीसेट कराते हैं हमारी सेटिंग, तब जाकर के हमारा नेट चलता है, राइट? ऐसा होता है ना यस सर। Yes, sir. यस बच्चों? सर। ऐसा होता है, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो होता क्या है कि जब ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना अपना खुद का मोबाइल नहीं यूज कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं यूज कर सकते, थोड़ी सी इंटरनेट सेटिंग को अगर हम चेंज कर दें तो क्या वो चीज हो सकती है यूज जिसमें ना तो इंफ्रारेड के लिए कोई रिसीवर है, ना वाईफाई के लिए कोई जनरेटर रिसीवर है, ना हॉटस्पॉट के लिए कोई जनरेटर रिसीवर है? मतलब आप सिग्नल को किसी जगह से भेजोगे और किसी जगह रिसीव करोगे तभी तो चीजें चलेंगी ना। तो ना तो उसमें जनरेशन के लिए कोई चीज है, ना ही रिसीवर एंड पर कोई चीज है, रिसिपेंट के लिए कोई चीज है। मतलब किसी भी Yes, तरह का sir. कोई भी ऐसा ट्रांसफरेबल ऑर्गेनिज्म या सिस्टम नहीं है उस मशीन के अंदर, तो कैसे आप उसे चेंज करोगे? वो Yes, पॉसिबल sir. नहीं है ईवीएम Transmitter. हैक का। इसीलिए हाँ, इस तरह कुछ भी उसके अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिन सर लोगों की ड्यूटी इसमें लगती है ईवीएम को कंडक्ट कराने में, वोटिंग को, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन लोग होते हैं? अंदाजा है किसी को कौन लोग होते हैं वो लोग? सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। Yes, sir. जब अब जब वो गवर्नमेंट professional. एम्प्लॉय होते हैं तो आप मुझे ये छोड़, प्रोफेशनल नहीं बेटा, वो प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, यस ठीक Okay, है। sir. और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, कई कई महीने पहले, इलेक्शन के एक एक डेढ़ महीने पहले उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि कैसे आपको वोट कंडक्ट करवाना है, पोलिंग कंडक्ट करवानी है, राइट? और उसके बाद अगर उनके ऊपर एक भी केस लगता है तो उनकी जॉब चली जाएगी। Yes, sir. तो आपको लगता है कि कोई आदमी अपनी जॉब पे आने देगा? जरा सी बात, राइट? No, sir. नो सर। हाँ, प्लस उसकी देख रेख में आपने देखा होगा पुलिस और आपके रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, आर्मीज, ठीक है, ये सब चीज ये भी डिप्लॉय किए जाते हैं सब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि उसको टेम्पर किया जा सकता है ईवीएम को, ये मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। यस सर। तो सर फिर कंट्री जो लाइक बड़ी बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका है सर, वो अभी तक अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं कि काउंटिंग के समय, क्या चीज? सर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो अमेरिका जैसी हैं सर, वो अभी तक बैलेट पेपर का सर यूज क्यों योर क्यों वॉइस करती इज हैं सर? ब्रेकिंग बेटा, आई एम नॉट एबल टू गेट योर वॉइस। हाँ, क्योंकि उनके यहाँ, पहली चीज देखो, उनके यहाँ एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। Yes, sir. अमेरिका की तो आवाज सर नहीं पर आ रही सही है बच्चों। पॉपुलेशन। सर आपकी आवाज बच्चों, नहीं आ रही। am I audible to you not?
Yes, sir. Am I Audible. यस सर, audible यू to आर you ऑडिबल सर। or not? आपकी वॉइस, लेकिन हमारी वॉइस शायद लेट में आ रही है आपके पास। हाँ, सर मैं ये पूछ रहा पता था नहीं मैं क्या कि सर एक अगर मिनट। हाँ जी। ईवीएम सही है तो सर फिर जो बड़ी बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका है सर, वो अभी तक बैलेट पेपर का यूज क्यों करती है और वो ईवीएम पर शिफ्ट क्यों नहीं हुई है? हाँ, देखो देखो क्या होता है, इंडिया को ईवीएम पे शिफ्ट होने के कई रीजंस हैं। पहली चीज, हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ इतने लेवल पर इलेक्शंस होते रहते हैं कि अगर हम बार बार बैलेट पेपर को यूज करेंगे, बार बार चीजों को यूज करेंगे, तो एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरा होगा, पहली चीज। टाइम कितना कंज्यूम होगा, दूसरी चीज। कितने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को वहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, तीसरी चीज। और चौथी चीज, टेम्परिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। पेपर को खराब करना ज्यादा आसान है क्या फिर मशीन को? पेपर में तो जरा सा मैंने आपको बताया, एक इंक का ड्रॉप भी डाल दिया वो खराब हो गया पेपर, अब वो काउंट ही नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। लेकिन बैलेट मशीन में इस तरह का कुछ नहीं है। सॉरी सर, उनके वहाँ डिसिप्लिन भी तो हमसे ज्यादा है ना, तो उनके वहाँ ऐसी चीजों के रिस्क बहुत कम रहते हैं। मैं उसी पे आने वाला था कि वहां पर टेम्परिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि हम लोगों ने, तो फॉर एग्जांपल, अगर 50%। हाँ जी सर, यूएस की पॉपुलेशन तो सर सही है, इतनी कम भी नहीं है। सही तो है बेटा, लेकिन वहां पर लोग भी तो हमसे ज्यादा समझदारी रखते हैं ना इस चीज के लिए। यस सर। लोग डेमोक्रेसी की बात अच्छे से समझते हैं ना। ऐसे टेम्परिंग तो नहीं करना चाहते ना हमारी तरह से कि हम लोग सड़क पे कहीं भी खराब चीजें करना शुरू कर देते हैं, राइट? थूकना, कचरा फैलाना, ये सब चीजें हम लोग करते रहते हैं। आपने देखा वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर एक सिविलाइज्ड तरीका है चीजों के करने का। वो लोग समझते हैं चीजें करना कैसे करते हैं, ठीक है? हालांकि रिसेंट इलेक्शन में आप देखोगे तो ट्रंप और जो बाइडेन है आपके, उनमें इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती रही, और अभी भी ट्रंप यही कहते हैं कि चीजों में टेम्परिंग की गई है, चीजें जानबूझ के खराब की गई हैं, अदरवाइज आई वाज विनिंग द कॉन्टेस्ट, नॉट द जो बाइडेन। ये तो आपने बहुत समय तक देखा होगा पेपर में, न्यूज में, काफी जगह बहुत ज्यादा ये है ना बच्चों? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे सर एक क्वेश्चन, यही बातें हैं, इसीलिए हम लोगों और को आया है सर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस टाइम पे भी सर, जब कन्वेंशन का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे सर। उस टाइम पे कौन से मेथड से इलेक्शंस हुआ करते थे? बैलेट पेपर ही थे या फिर कोई और मेथड था उस टाइम पे? बेटा, पहले उतना हमारा सिस्टम इतना अच्छा था क्या हमारे पास, कि हमारे पास इंटरनेट और ये सब चीजें अवेलेबल थी? सर उस समय तो ये होता होगा कि जिसे जो मतलब जो कैंडिडेट पसंद है सिर्फ उसका जाके नाम लिखवा देता होगा वो। तो मतलब वहाँ पे क्या था, बैलेट पेपर? देखो, मैंने अपनी लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 तरह से इलेक्शन में वोट कास्ट किया है अपने, मुझे जहां तक ध्यान है, तो मैं वो एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। एक तो सबसे आसान हो गया जो अभी चल रहा है, ईवीएम के थ्रू, ठीक है? ईवीएम में भी 2 तरह से हुआ है। एक तो पहले ईवीएम में सिर्फ मैं बटन दबा के आ जाता था, दैट्स इट, उतना ही हो जाता था, हमको लगता था कि हम सही वोट डाल दिए। एक अब क्या हो गया है कि उन्होंने ईवीएम मशीन के साथ में एक छोटी सी मशीन और रख दी है, जिसपे आप जब क्लिक करते हो अपने फेवरेट कैंडिडेट को, तो उसमें मशीन में आप विजिबली देख सकते हो कि आपका वोट किस कैंडिडेट को गया। उसमें वो दिखाता है, उसका नाम और उसका वो साइन, पार्टी का नाम, ये सब चीज दिखाता है, ठीक है? सर इंटरनेट एक 2 तो ये हो गए ऑप्शन। वोट कर सकते इंडिया में? नहीं, अभी नहीं कर सकते। आप इंटरनेट की सिक्योरिटी की हालत देख रहे हो? इंटरनेट की इतनी सारी वेबसाइट्स तो कभी भी हैक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी एम्बेसीज की वेबसाइट हैक हो जाती है, यूएस के, यूके के, रशिया के सर्वर्स हैक हो जाते हैं। यस सर, नासा भी हैक क्रैश हो जाती हैं, हैक हो जाती हैं, एक साथ ट्रैफिक इतना सारा आएगा तो क्या होगा? उसका डेटाबेस समझ रहे हो कितना हैवी सर्वर लगाना पड़ेगा उसके लिए? यस सर। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं ये लोग
मुझे ऐसा लगता है कि जो एनआरआई हैं, ठीक है, उन एनआरआईज के लिए एक स्पेशल कुछ किया जा सके कि भाई जो लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, जो बाहर चले गए हैं, इंडियन ही, उनकी सिटीजनशिप भी इंडियन है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो भाई वोट करने इंडिया नहीं आ सकते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जा सकता है कि वो अपना ईमेल के थ्रू, अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करके या फिर अपने ईमेल पे लिख करके खुद से वो भेज सकते हैं, और उसको एक टाइम दे दे कि भाई आप अगले एक 8 घंटे के टाइम में, इलेक्शन शुरू होने के टाइम से लेकर इलेक्शन शुरू खत्म होने के टाइम तक के बीच में, अगर आपने इस वेबसाइट पर मेल किया अपनी आईडी, पासवर्ड, अपना आधार कार्ड, ये वो डाल के, अपने वेरिफिकेशन डाल के, तो शायद आपको काउंट किया जाएगा। तो ऐसा एक जस्ट मेरे दिमाग में परफॉर्मा है, खाली मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे भी सोच रही है नहीं सोच रही है, बट इट इज जस्ट इन माय माइंड, आई एम गिविंग यू फॉर माय ओपिनियन एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी आम लोगों के लिए अभी इंटरनेट पे वोटिंग करना, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इजी, प्लस वो उतना फिजिबल भी नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे लोग सारी तो क्रैश हो जाती है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, छोटी मोटी जॉब की वैकेंसी निकलती है तो वो वेबसाइट फॉर्म नहीं भर पाते हम लोग, वो क्रैश हो जाती है वेबसाइट्स। यस सर, रिजल्ट के टाइम पे भी, रिजल्ट के टाइम पे रिजल्ट्स आते हैं, 9th 10th 11th बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, मेडिकल एंट्रेंस के रिजल्ट्स आते हैं, तो क्रैश हो जाती है वेबसाइट। तो मुझे नहीं लगता कि ये तो ना तो इतना इजी है इतने सारे लोगों का वोट करवाना, उतना फिजिबल भी नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि उतना सेफ भी है अभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेफ्टी भी बहुत मुझे एक कंसर्न है, ठीक है। मान लीजिए कोई साइबर एक्सपर्ट आया, उसने अपने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर दी है एक वेबसाइट, लगा दी एक बंदे के नाम पर खूब सारे वोट्स, क्या करोगे आप, राइट? जब तक आप पकड़ोगे कि ये हैक हुआ है तब तक तो इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब तक सारा मामला बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यस सर। कौन पढ़ेगा? सर मैं आए? किसने बोला? सर मोक्षिका ने। सर बी वालों ने पढ़ लिया सबने? बी वालों ने सबने पढ़ लिया मेरे हिसाब से, तो कोई सर बचा है बी वाला? सर एक बचा है। कौन? सर कुछ कौशिक, वो पता नहीं पड़ेगा नहीं। कुछ बेटा पढ़ना है? है भी, मुझे ऐसा लगता है वो है। नो सर नहीं है। ठीक है बेटा, मोक्षिका तुम्हें पढ़ो फिर। Okay, sir. What makes elections in India democratic? We get to read a lot about unfair practices in elections. News and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about following: inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list. Misuse of government facilities and officials by the ruling party, excessive use of money by rich candidates and big parties, and intimidation of voters and rigging of the polling day. On the polling day, many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports, but fortunately they are not on such a scale so as to defeat the various purpose of elections. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. Election Commissioner (CEC) is appointed by the President of India, but once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commissioner does, it is virtually एक impossible. पैराग्राफ छोड़ दिया मोक्षिका आपने। Sorry, बेटा एक पैराग्राफ इसमें गायब आपने कर दिया। सर वो सॉरी सर फिर नीचे ऊपर जहाँ भी है। ओके सॉरी।
Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the elections. Are they independent of the government, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? The answer to all these elections is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, EC. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The Chief Election Commissioner, sir ऊपर कर दीजिए, CEC, Mokshika, your voice is breaking. Only my Your voice is breaking. सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, yes sir, एक और बार आपकी रिज्यूम end कर से लो। इसलिए कट जाती है। सर ब्रेक हो गया बहुत ज्यादा। ओके, मैं वही पूछ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मोक्षिका की वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत माइन्यूट वॉइस आ रही थी और बहुत ब्रेक होकर के आ रही थी। सर अब आपकी आवाज सही आ रही है। तो मुझे लगा मेरे ही एंड पे खराब है शायद। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर। सर आपके पास सर हमारी आवाज लेट पहुंच रही है। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। बेटा एक काम करो मोक्षिका, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर से पढ़ दो। Okay, sir. Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the elections. Are they independent of the government, or can the government or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? The answer to all these questions is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, EC. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. Sir, Red. The Chief Election Commissioner, CEC, is appointed by the President of India. But once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commissioner does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. Very few election commissions in the world have such wide ranging powers as the Election Commission of India. EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of the election to the declaration of the results. It implements a code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power, to enhance its chances to win elections, or to transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the commission. The सर नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा ही रह रहा है। The during the election during the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win the elections, or to transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they ordered a repoll. The ruling parties often do not like what the EC does, but they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent and powerful. ठीक है।
सर अच्छा, कोड कौन ऑफ कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर बस एक डाउट था सर, कोड ऑफ कंडक्ट वही होता है ना हाँ जिसमें हमें गाइडलाइंस दे दी जाती हैं पार्टीज को कि इतना इतना खर्च करना और ऐसे करना है वैसे करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, एक तरीके से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे कि हम स्कूल्स में देखते हैं। यस हमारा स्कूल का भी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हमें यूनिफॉर्म पहनना है, इस दिन ये वाला यूनिफॉर्म पहनना है, यस हमें सर। यहाँ से वहां नहीं जाना है, हमें अपनी ही क्लास में बैठना है, हमें यस। इस रोल नंबर के थ्रू एग्जाम देना है। तो ये मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सेम वे उसमें भी होता है। कोड ओके ऑफ कंडक्ट बेसिकली होता क्या है कि किस तरह से चीजें अच्छे से चल सके, वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई है बच्चा? यस सर। मानस, आज Yes, अर्नव sir. नहीं है क्लास में? नो सर। यस सर, आज सर कम बच्चे हैं क्लास में। चलो मानस, फिर बताओ तुम एक बार। ओके सर। सर हम आए दिन पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये अनफेयर प्रैक्टिस हो गई इलेक्शन जीतने के लिए, ये माल प्रैक्टिस हुई। तो सर इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है इलेक्शन कमीशन। सर इसको हम इंडिया में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सर ये बहुत पावरफुल है। और सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ है माल प्रैक्टिसेस, जो भी मिसयूज अगर गवर्नमेंट करती है किसी भी चीज़ का, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, तो उसका ये ख्याल रखती है और उसका ये आगे देखती है। सर हमारी कंट्री में अगर हम ये जानना चाहें कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं, तो इसके अगर हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, तो इसका सर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि सर इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी की तरह सेम फ्रीडम एंजॉय करती है। और सर ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती। इसका मतलब कि अगर ये कोई डिसीजन लेती है तो ये इलेक्शंस के टाइम पे सबसे बड़ी बॉडी बन जाती है। मतलब सर गवर्नमेंट को भी इनके डिसीजंस को, इनके जो फाइनल डिसीजन है उसको मानना पड़ता है। इलेक्शन के टाइम पे ये मोस्ट पावरफुल बॉडी बन जाती है। और जो इसके हेड होते हैं, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनसे अपॉइंट होते हैं। अभी हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है सुनील अरोड़ा जी सर, वो है हमारे। और सर इसको अगर और इनको रिमूव करना सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड सर हम देखते हैं कि सर अगर कोई भी सर वॉयलेशन होता है तो सर जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है सर उसके बाद कुछ चीज़ें जो होती है वो लागू कर दी जाती है। जैसे सर 2 वीक्स का टाइम होता है कि हम अपना प्रचार कर सकते हैं, सर वो भी जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है। और सर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू करते हैं। और सर अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो सर उसको या तो उसके जो इलेक्शन के जो मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं, और अगर वो इलेक्ट भी हुए होते हैं तो फिर उनको हटा दिया जाता है। और सर हमारी लास्ट 15 ईयर्स से सर ये जो इलेक्शन कमीशन है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी बन चुकी है। और सर जो काम इलेक्शन कमीशन करती है वो पार्टीज को पसंद नहीं आता है, लेकिन वही बेस्ट होता है। और कभी कभी सर अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि यहाँ पे कोई माल प्रैक्टिस से इलेक्शंस हुए हैं या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो रीपोल भी कर सकते हैं। रीपोल मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर उस पोल पे या फिर उस पोलिंग बूथ पे के इलेक्शंस दोबारा किए जाएंगे और दोबारा काउंटिंग की जाएगी। और सर इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने का वन ऑफ द मेन रीजंस ये हमारी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक फ्रीडम एंजॉय करती है जो हमारी जुडिशरी उसकी तरह। हाँ, बस एक पॉइंट बेटा, शायद मुझे लगता है तुमने शायद स्किप कर दिया, तो मुझे सुनाई नहीं दिया होगा, हो सकता है। मैं बता देता हूँ फिर भी कि इसको अपॉइंट जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, यानी चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो वो उसको आंसरेबल नहीं रह जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे, आंसर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो फ्री हो जाता है फिर अपने उस पे, ठीक है। और कैसे भी इम्पीच नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता, भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोलिंग रूलिंग पार्टी या फिर कोई अपोनेंट पार्टी उसके खिलाफ कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ को कैसे भी नहीं हटाया जा सकता। और यही वो पावर है जिसके थ्रू वो एक्सरसाइज करके इंडिया में फेयर इलेक्शन और फ्री इलेक्शन दोनों चीज करवा सकते हैं। तो सर फिर मतलब वो हटेंगे ही नहीं कभी भी? नहीं, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है वो विड्रॉ हो जाता है ना।
मतलब एक इलेक्शन के लिए एक इलेक्शन कमीशन, दूसरे के लिए दूसरे आएंगे? नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो काम करती रहती है लगातार, ऐसा नहीं कि सर वो खत्म हो जाती है। सर CEC जो है वो कब हाँ, हटता है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बार उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कोई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटायर हो गए, तो ये उसके बाद नॉर्मली जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वैसे ही काम करता है बेटा, ये भी बस अच्छा, अंतर रिटायर होने के बाद हटेंगे? यहाँ पर एक बार अपॉइंट होने के बाद कोई भी पार्टी, हाँ हाँ, कोई भी पार्टी या कोई भी वो व्यक्ति उनको हटा नहीं सकता, चाहे वो इवन द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर और एनी गवर्निंग बॉडी, वो उनको हटा नहीं सकती, ठीक है। यस सर। सर वो वहाँ पे जो बहुत बूढ़े उम्र में रखे जाते हैं उधर 55 इयर्स 56 इयर्स, उनको रिटायर ही होना पड़ता है। तो क्योंकि वो बहुत जल्दी रिटायर हो ही जाते हैं वो। यस सर। ऐसे ही तो कोई नहीं इतनी बड़ी गवर्निंग पोजीशन संभाल लेगा, क्योंकि कम से कम उसको एक्सपीरियंस तो 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तभी जाकर तो वो ऐसा काम करते हैं। और जितने भी होते हैं ना सिविल सर्वेंट होते हैं, IAS यस और इसी कैटेगरी के होते हैं। हाँ सर, तो एक उन लोग को ही लेकर के बनाया जाता है, तो दे आर वेरी मैच्योर्ड एंड सेंसिबल। सर जो एक IFS ठीक है होता बच्चों। हाँ है, बच्चों। सर जब एक हाँ सर जब वो एम्बेसडर बन जाता है एंड सपोज कि वो रिटायर हो गया, तो सर वो इंडिया में उसे वापस आना पड़ता है? क्योंकि सर अच्छा आना हाँ, पड़ता अगर है। वो वहां रहना चाहते हैं वहां भी रह सकते हैं, इंडिया में सकते हैं तो इंडिया में रह सकते हैं। तो अगर वो वहां रहेंगे तो उनको पेंशन अलॉट होगी? नहीं नहीं होगी ना, क्योंकि उनकी सिटीजनशिप फिर वहां की हो जाएगी। नहीं। अच्छा, हाँ। और सर जो IFS है हमारे अभी फिलहाल के मतलब मोदी गवर्नमेंट में वो कुछ पोस्ट है ना उनकी, सुब्रमण्यम ऐसे करके कुछ नाम है, तो सर अब वो जैसे कैबिनेट के मेंबर भी बन गए, एज वेल एज वो IFS से रिटायर्ड भी है, तो इसका मतलब उनको पेंशन भी मिलेगी और उनको वो भी मिलेगी जो कैबिनेट के एक उसको अलॉट की जाती है मनी, या एक नहीं, चीज? एक ही चीज मिलती है बेटा, अच्छा, मतलब या किसी तो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप एक ही जगह से बेनिफिट ले सकते हो इकोनॉमिक। हाँ ओके किसी सर, भी तरह से ठीक है सर, आप 10 पोजीशन में भी हो जाओ फिर भी आप एक ही सैलरी ले सकते हो। ओके सर, सर करंट इलेक्शन ठीक है बच्चों, आज के लिए कमीशन इतना ही, ठीक हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, क्या? गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, supervisor.